लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर इट इज. यहाँ पे 2 एसिटाइल को ए मिल रहे हैं, ठीक है, थायोलेज एंजाइम के थ्रू, एंड दे आर कन्वर्टिंग इनटू एसिटो एसिटाइल को ए. ठीक है, अब जो एसिटो एसिटाइल को ए है ये कन्वर्ट हो रहा है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल को ए में, HMG को ए में, और यहाँ पे एक एसिटाइल को ए यूज़ हो रहा है. ठीक है, वी हैव सीन अब तक 3 एसिटाइल को ए यूज़ हो चुके हैं. 2 एसिटाइल को ए यहाँ पे कंडेंस हुए टू गिव एसिटो एसिटाइल को ए. नाउ दिस एसिटो एसिटाइल को ए इज फर्दर गोइंग टू कंबाइन विद एन अदर एसिटाइल को ए टू गिव अस HMG को ए. ठीक है, ओके. नाउ दिस HMG को ए is going to cleaved into acetoacetate plus 1 free acetyl CoA. ठीक है, अब HMG क्लीव हुआ किसमें, एसिटोएसिटेट में और एसिटाइल CoA में. दिस एसिटोएसिटेट इज गोइंग टू रिड्यूस्ड इनटू बीटा डी हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड is going to decarboxylize into acetone. ठीक है, this acetone is producing in very lesser amounts and is going to be exhaled through lungs. ठीक हो गया. अब तक हमने क्या देखा, 2 एसिटाइल को ए कंडेंस होते हैं टू गिव acetoacetyl CoA. This acetoacetyl CoA is going to combine with another acetyl CoA and will give us HMG CoA, beta hydroxy beta methyl glutaryl CoA. This HMG CoA is going to cleave into acetoacetate plus acetyl CoA. Now this acetoacetate is going to reduce into beta hydroxy butyrate and also will be decarboxylized into acetone. The thing that you need to remember is their names, acetyl CoA, 2 molecules of acetyl CoA and acetoacetyl CoA, और यहाँ पे यूज़ हो रहा है एक acetyl CoA और, and it is giving us beta hydroxy HMG CoA, और फिर ये क्लीव हो रहा है into acetoacetate प्लस एक हमें acetyl CoA फ्री में मिल रहा है. लाइक एक acetyl CoA भी प्रोड्यूस हो रहा है. जो HMG क्लीव हुआ है ना, ये into 2 प्रोडक्ट्स क्लीव हुआ है. The one is acetoacetate and the other one is acetyl CoA. This acetoacetate is converting into beta hydroxy butyrate by reduction. यहाँ पे जो NADH है वो रिड्यूस हो रहा है into NAD पॉजिटिव. ठीक है, जो NADH है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है NAD पॉजिटिव में, और एसिटोएसिटेट रिड्यूस हो रहा है बीटा डी हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में, और इसके साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है इस स्टेप में, और एसीटोन प्रोड्यूस हो रहा है विच इज़ लेसर इन अमाउंट और कैन बी एक्सेल्ड थ्रू लंग्स. ओके, व्हाट दे हैव रिटन. ओके, यहाँ पे हमने एक एंजाइम पढ़ा था विच इज़ स्टीरियोआइसोमर, और वो कौन सा था, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट dehydrogenase, if I'm not wrong. Yeah, it was a dehydrogenase which is a mitochondrial enzyme and it is D stereoisomer. It will not act on L beta hydroxy acyl CoA. ठीक है, this is the things that you need to remember. Okay, D3 hydroxybutyrate is formed by the reduction of acetoacetate in the mitochondrial matrix by D3 hydroxybutyrate dehydrogenase. ये enzyme लिखा हुआ है. The odor of acetone may be detected in the breath of a person which has a high level of acetoacetate in the blood. Now, we have studied earlier कि जो blood है वो acidic हो जाएगा, जो यूरिन है वो एसिडिक हो जाएगा. दीज वर द 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर अ डायबिटिक पेशेंट. ठीक है, द अदर वन इज द ऑर्डर ऑफ एसीटोन इन द ब्रेथ. ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट है, जो मोस्ट प्रोबेबल डायबिटिक पेशेंट है, उसमें उसके हमने 3 डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़े हैं. द नंबर 1 इज़ द ब्लड विल बी एसिडिक, द नंबर 2 इज़ यूरिन विल बी द एसिडिक, एंड द नंबर 3 इज़ द order. ठीक है, that order of acetone may be detected in the breath of a person because it is the acetone producing here is going to exhale through lungs, और इसकी order को हम smell कर सकते हैं in the breath of a person with the high level of acetoacetate. Obviously acetoacetate है तो acetone में convert हो रहा है ना, तो ये acetone को आप smell कर सकते हैं in the breath of a person.
जिसमें एसीटोएसीटेट बन रहा है। और ये क्यों बन रहा है? बिकॉज हमारी बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक है, द बॉडी इज़ नॉट यूजिंग ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ breaking down the fats and converting the fats into ketone bodies, because there are some cells in the body, there are some tissues in the body which cannot use fatty acids as a source of energy, so they need some other compound or a molecule which they can be used to give them energy to use as a source of energy. So we are converting the fatty acids into ketone bodies as a to transport it to the cells which cannot use fatty acids as a source of energy, like brain cell. The primary source of energy for the brain cell is glucose, and the secondary source of energy is ketone bodies. It has no other choice to use any other compound as a source of energy, so we have to produce ketone bodies. और ये सब किस वजह से हो रहा है? Because the person was hypoglycemic, and the person who is continuously being in hypoglycemic state is the one who is not producing insulin. Okay, the person, sorry, I said it wrong. The person who is hypoglycemic condition is the one who is diabetic patient, राइट, बिकॉज उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और उसमें इंसुलिन जो है वो ग्लूकागॉन को इनहिबिट नहीं कर रहा, एंड द ग्लूकागॉन इज कॉन्टिन्यूसली ट्रिगरिंग द एडिपोसाइड्स to convert the triacylglyceride into fatty acids and glycerol, and that fatty acid is going to liver, and that fatty acid is going to mitochondria of liver and is transferring into ketone bodies. अब ketone bodies उसकी body में ज़्यादा हैं, and that can be detected by the breath of that person, that can be detected by testing the urine of that person. It will become out acidic urine, and that can be detected by testing the blood of that person. By taking the pH of the blood of that particular person, it will be acidic. Okay, now the ketone bodies acetoacetate and D-beta hydroxybutyrate are transported by the blood to tissues. Okay, एसीटोन तो रिलीज हो गई, वो तो एक्सेल हो गई, ठीक है, एंड दैट द ऑर्डर ऑफ एसीटोन कैन बी यूज एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट for the presence of ketone bodies in body. Okay, acetoacetate और जो dehydroxybutyrate है, these will be transported by the blood to the tissues other than liver. Extra heptic tissues, ठीक है, liver अदर देन द लीवर वो दूसरे टिश्यूज़ में जाएंगे वेयर दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए. अब तक का सारा काम लिवर कर रहा था, लेकिन अब जब कीटोन बॉडीज़ बन गई हैं तो नाउ दीज कीटोन बॉडीज़ विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर टिश्यूज़. दीज अदर टिश्यूज़ वी आर नेमिंग दैम एक्स्ट्रा हेप्टिक टिश्यूज़. अब वो एक्स्ट्रा हेप्टिक टिश्यूज़ में जाएंगी वेयर दे आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए. हमने कीटोन बॉडीज़ बनाना कहाँ से स्टार्ट की थी? हमने एसिटाइल कोए को कंडेंस किया था, और सारे स्टेप्स करते करते हमने कीटोन बॉडीज़ बना दी थी. नाउ व्हेन वी हैव ट्रांसफर्ड दीज कीटोन बॉडीज़ फ्रॉम लिवर टू सम अदर सेल, व्हाट हैपेंड इन दैट सेल, वो कीटोन बॉडीज़ वापस टूटेंगी एसिटाइल कोए में. अब एसिटाइल कोए TCA साइकिल में रन करेगा, ऑक्सैलोएसिटेट के साथ मिलेगा, सिट्रेट बनाएगा, TCA साइकिल रन होगा, और वहाँ से ATP मिलेगी, NADHS मिलेंगे, FADH2 मिलेंगे हमें वहाँ पे, ठीक है, and oxidized into the citric cycle, providing much of the energy required by the tissues such as skeletal and heart muscles and the renal cortex. Where these ketone bodies are going, these are going skeletal muscles में जा रही हैं, heart muscles में जा रही हैं, renal cortex में जा रही हैं. But remember, your muscles love to use fatty acids as a source of energy. जब उसके पास fatty acid आ रहा है as a source of energy, ठीक है, और जो ब्रेन है which preferentially use glucose as a fuel, उसकी प्राइमरी प्रायोरिटी क्या है? ग्लूकोज. कैन अडाप्ट टू यूज ऑफ एसिटोएसिटेट और D-beta hydroxybutyrate अंडर स्टारवेशन कंडीशन व्हेन ग्लूकोज इज अनअवेलेबल. जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, नाउ द ब्रेन कैन यूज इट्स सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज द कीटोन बॉडीज. एंड व्हाट आर द कीटोन बॉडीज? दीज आर एसिटोएसिटेट एंड D-beta hydroxybutyrate. The production and export of ketone bodies from liver to extra heptic tissues. What are the extra heptic tissues? Tissues other than liver are extra heptic tissues. The production and export of ketone bodies from the liver. The ketone bodies are producing where? In the liver. These are producing in the liver, and they are getting transport, they are getting export from liver to extra heptic tissues. What happens? Allows continued oxidation of fatty acids. Ketone bodies are going out,
और कीटोन बॉडीज़ बाहर जाती जा रही हैं और पीछे से जो रिएक्टेंट्स हैं वो आगे फर्दर कन्वर्ट हो रहे हैं उसमें प्रोडक्ट में. व्हाट वाज द प्रोडक्ट? द कीटोन बॉडीज़ वाज द प्रोडक्ट, राइट. जब आपने फॉरवर्ड लेकर जाना होता है रिएक्शन को, व्हाट यू डू, आप प्रोडक्ट उसमें से निकालते जाते हो, तो जो रिएक्टेंट्स हैं वो मिलते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाते हैं. इक्विलिब्रियम स्टेट कब मेंटेन होती है? व्हेन योर कंसंट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट इज एट बैलेंस लेवल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट. ठीक है, अब जब आप प्रोडक्ट रिमूव करते जा रहे हो, व्हाट विल हैपन, योर रिएक्टेंट्स विल टेंड टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट मोर लाइक फास्ट, यू कैन से, कि वो ज़्यादा कन्वर्ट होंगे. फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो आपका फास्ट हो जाएगा क्योंकि आप प्रोडक्ट निकालते जा रहे हो. फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगा. अब आप कीटोन बॉडीज़ तो ट्रांसफ़र कर रहे हो एक्स्ट्रा हेप्टिक सेल्स में, तो ये क्या होगा, इट विल अलाउ कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. नाउ योर लिपिड्स विल बी ब्रेकिंग डाउन. नाउ द फैटी एसिड जो है उसकी ऑक्सीडेशन, जो बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है, वो कंटिन्यू रहेगी बिकॉज यू आर एक्सपोर्टिंग आउट द कीटोन बॉडीज़. यू आर फेवरिंग द फॉरवर्ड रिएक्शन. आप फेवर कर रहे हो फॉरवर्ड रिएक्शन को. ठीक है. When acetyl CoA is not being oxidized into citric acid cycle. जब एसिटाइल को ए जो प्रोड्यूस हो रहा है फैटी एसिड की ब्रेक डाउन से, फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से जो एसिटाइल को ए प्रोड्यूस हो रहा है, व्हेन इट इज़ नॉट बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, जब वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा सिट्रिक एसिड साइकिल में, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू कीटोन बॉडीज एंड यू आर कंटिन्यूसली एक्सपोर्टिंग द कीटोन बॉडीज टू एक्स्ट्रा हेप्टिक सेल. नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर रिमूविंग द प्रोडक्ट from the system, now the reaction will be favorable to the forward direction. आपका जो ऑक्सीडेशन ऊपर से बीटा ऑक्सीडेशन हो रही थी फैटी एसिड की, डैट विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगी. आपको कीटोन बॉडीज मिलती रहेंगी बिकॉज द एसिटाइल को ए विच इज़ फॉर्मिंग द कीटोन बॉडीज इज नॉट गोइंग इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल. वो सिट्रिक एसिड साइकिल में नहीं जा रहा. अगर वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता तो हमारी ये स्टॉप हो जाती. लाइक द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी रिक्वायर, हमें जितनी ATP चाहिए हम वो लेते और हम अपनी बीटा ऑक्सीडेशन स्टॉप कर देते. बट नाउ द acetyl CoA is not going into citric acid cycle. What is happening with acetyl CoA? It is converting into ketone bodies and we are removing the ketone bodies. We are exporting the ketone bodies from the site where it is producing, which is liver. Liver से हम इसको export कर रहे हैं, continuously हम इसको export कर रहे हैं to extra hepatic tissues. और इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो oxidation of fatty acid है वो continue हो रही है. Right, in healthy people, acetone is formed in very small amount from acetoacetate, which is easily decarboxylated either spontaneously or by the action of acetoacetate decarboxylase. Okay, now जो हमारे पास जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है. फैट्स टूट रहे हैं और वो एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो रहे हैं और वहाँ से कीटोन बॉडी का ये सारा प्रोसेस हो रहा है. और बिकॉज दे नीड कीटोन बॉडीज, उनको एनर्जी चाहिए, ऑब्वियसली दे नीड टू लिव. दे कॉन्ट क्विट लिविंग बिकॉज उनके पास ग्लूकोज नहीं है और उनको ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल रही. देयर बॉडी विल नॉट क्विट लिविंग. ठीक है, इट हैज़ टू सर्वाइव, इट हैव टू सर्वाइव. और वो सर्वाइवल के लिए क्या करेगी, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग फैटी एसिड्स, इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग लिपिड्स. ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो टूटना शुरू होंगे और फिर वो आपको फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे और फैटी एसिड जो हैं वो उनकी बीटा ऑक्सीडेशन होगी, एसिटाइल को ए मिलेगा और वो एसिटाइल को ए कंडेंस होगा एंड ऑल दिस स्टेप्स विल ये सारे स्टेप्स होंगे और फिर आपको इवेंचुअली एसिटोएसिटेट मिलेगा. नाउ ये एसिटोएसिटेट जो है, दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. कैन यू सी, ये एसिटोएसिटेट जो है वो रिड्यूस हो सकता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट में और वापस ऑक्सीडाइज हो सकता है एसिटोएसिटेट में. एंड दिस एसिटोएसिटेट इज कन्वर्टिंग इनटू एसीटोन. इट कैन हैपन लाइक विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम विच इज एसिटोएसिटेट डीकार्बोक्सिलेज, या फिर ये स्पॉन्टेनियसली भी हो सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम. व्हेन द एंजाइम इज नॉट कैटलाइजिंग द रिएक्शन इट कैन स्टिल हैपन. ठीक है, अब जब आपके पास एसिटोएसिटेट बहुत ज़्यादा बन रहा है, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू बीटा डिहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, लेकिन ऑब्वियसली इसकी अमाउंट भी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जब आपके पास एसिटोएसिटेट कम बन रहा है, इसकी अमाउंट भी कम होगी. जब एसिटोएसिटेट ज़्यादा हो रहा है तो एज कम्पेयर टू द कंट्रोल्ड वन, एज कम्पेयर टू द हेल्दी पर्सन जिसमें एसिटोएसिटेट की अमाउंट कम है, एसीटोन भी वहाँ पे कम होगा. और जो डायबिटिक पेशेंट है जिसमें एसिटोएसिटेट की अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ पे एसीटोन भी ज़्यादा होगा. ओके, गॉट इट.
डायबिटिक पेशेंट में एसीटोन ज़्यादा प्रोड्यूसर है, दैट्स वाई वी आर एबल टू स्मेल दैम, ठीक है, हम उसकी ऑर्डर को स्मेल कर सकते हैं द ब्रेथ ऑफ अ पर्सन बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एसीटोन. उनके पास बहुत ज़्यादा एसीटोएसीटेट था, दे आर कन्वर्टिंग दैट एसीटोएसीटेट इनटू एसीटोन. डिकार्बोक्सिलेशन हो रही है. दैट डिकार्बोक्सिलेशन कैन हैपन स्पॉन्टेनियसली और दैट कैन यूज द एंजाइम एसीटोएसीटेट डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है. और जो हेल्दी पेशेंट पर्सन है उसमें एसीटोन की जो है वो अमाउंट है वो लेस होती है. और हेल्दी पर्सन में ये कब बनता है, जब आपने सुबह खाना खाया और दोपहर तक आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो डाउन हो गया, नाउ योर फैट्स आर ब्रेकिंग डाउन, ठीक है. उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होता है. फिर आप दोपहर में दोबारा खाना खा लेते हैं, यू अगेन गेट द ग्लूकोज, यू आर अगेन इन अ वेल फेड स्टेट. फिर आपको ग्लूकोज से एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है अनटिल अनलेस आपका ग्लूकोज वापस लो लेवल पे नहीं जाता. तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए हमारे पास जो है ना वो कीटोन बॉडीज़ बनती है और बहुत थोड़ा सा एसीटोन बनता है, और वो दैट इज़ नॉट इनफ टू बी स्मेल इन द ब्रेथ, ठीक है. लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं दे आर सर्वाइविंग ऑन दीज कीटोन बॉडीज़, तो उनके पास एसीटोन बहुत ज़्यादा होता है, सो इवेंचुअली इट कैन बी स्मेल इन द ब्रेथ ऑफ दैट पर्सन, दैट डायबिटिक पर्सन, ठीक है. सो यही बात यहाँ पर हो रही है, नॉट हियर, यहाँ पर हो रही है कि हेल्दी पीपल में एसीटोन जो है वो बहुत स्मॉलर अमाउंट्स में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, विच इज़ ईजिली डीकार्बोक्सिलेटेड इधर स्पॉन्टेनियसली और बाय द एक्शन ऑफ, स्पॉन्टेनियसली भी वो डीकार्बोक्सिलेट हो सकता है और बाय द एक्शन ऑफ एसीटोएसीटेट डीकार्बोक्सिलेज भी वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके एसीटोएसीटेट कन्वर्ट हो सकता है एसीटोन में. Because the individuals with untreated diabetic produce large quantities of एसीटोएसीटेट, देयर ब्लड कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एसीटोन. क्योंकि यहाँ पे एसीटोएसीटेट ही ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है, तो एसीटोन भी कंपेयर टू द हेल्दी पर्सन इनमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. एसीटोन इज़ वोलेटाइल एंड इम्पार्ट अ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर. इट इज़ वोलेटाइल, तो ये क्या करता है, इम्पार्ट करता है करेक्टरिस्टिक ऑर्डर टू द ब्रेथ, विच इज़ समटाइम्स यूजफुल इन डायग्नोसिस डायबिटीज़. हमने 3 टेस्ट पढ़े, द वन इज लिपिड, द वन इज ब्लड एसिडिक होता है, द सेकंड वन वाज यूरिन एसिडिक होता है, एंड द थर्ड वन इज वी कैन स्मेल एसीटोन इन द ब्रेथ ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट बिकॉज इट इज वोलेटाइल, ये इवेपोरेट हो जाता है लाइक ब्लड में से, ये एक्सेल होता है थ्रू लंग्स. ओके, अब हमने कीटोन बॉडीज़ तो बना ली, अब हमने इन कीटोन बॉडीज़ को यूज़ करना है एज ए फ्यूल. व्हाट हैपन्स हेयर, एक्स्ट्रा हेप्टिक सेल कीटोन बॉडीज़ कहाँ बनी थी, लिपिड में बनी थी. लिपिड से हमने इनको एक्सपोर्ट किया था इनटू एक्स्ट्रा हेप्टिक सेल ताकि वो इसको यूज़ कर सकें एज ए फ्यूल, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा हेप्टिक सेल्स में डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट इज ऑक्सीडाइज टू एसीटोएसीटेट बाय डी हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डीहाइड्रोजिनेज. ओके, व्हाट हैपेंड इन द लिवर कि जो एसीटोएसीटेट था वो रिड्यूस हुआ था डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में. नाउ आफ्टर exporting that dehydroxybutyrate to the extra haptic cell, the d beta hydroxybutyrate is oxidizing into एसीटोएसीटेट. लिवर में एसीटोएसीटेट रिड्यूस हुआ था बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में. अब हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को लेकर चले गए एक्स्ट्रा हेप्टिक टिश्यू में. एक्स्ट्रा हेप्टिक टिश्यू में जाके ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ऑक्सीडाइज हो रहा है वापस किसमें, एसीटोन में. और ये एंजाइम है जो इस एक्शन को कैरी करवा रहा है, कैटेलाइज करवा रहा है इस रिएक्शन को. एसीटोएसीटेट इज activated to its coenzyme A ester by transfer of CoA from succinyl CoA, an intermediate of citric acid cycle in a reaction catalyzed by beta ketoacyl CoA transferase, also called thiophorase. Okay, this is succinyl CoA is an intermediate of citric acid cycle. I have a complete detailed video on citric acid cycle. You can move to that video and watch that. सिट्रिक एसिड साइकिल का एक इंटरमीडिएट है सक्सिनेट, और जब वो सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट में तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, सक्सिनाइल को ए की प्रेजेंस में होता है. दैट सेम सक्सिनाइल को ए विच इज़ एन इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज हियर.
वही सेम सक्सिनाइल को ए यहाँ पे है, और वो सक्सिनाइल को ए क्या करता है, अपना को ए देता है टू एक्टिवेट द कोएंजाइम ए एस्टर ऑफ एसिटोएसिटेट। एसिटोएसिटेट का कोएंजाइम ए एस्टर उसको एक्टिवेट करने के लिए सक्सिनाइल को ए अपना को ए दे रहा है। इन अ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय, दिस इज एन एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करवा रहा है, और इस रिएक्शन का पर्पस क्या है, एसिटोएसिटेट के कोएंजाइम ए एस्टर को एक्टिवेट करना, और इसके एक्टिवेशन के लिए सक्सिनाइल को ए विच इज़ एन इंटरमीडिएट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। और ये सिट्रिक एसिड साइकिल में कहाँ पे यूज़ हो रहा था, जब सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर रहे थे, फ्यूमेरेट में, तो वहाँ पे सक्सिनाइल को ए यूज़ हो रहा था। दैट सेम सक्सिनाइल को ए इज़ यूटिलाइजिंग हियर टू एक्टिवेट द कोएंजाइम ए एस्टर ऑफ एसिटोएसिटेट। कोएंजाइम एसिटोएसिटेट का है, इसको एक्टिवेट करने के लिए सक्सिनाइल को ए से हम क्या ले रहे हैं, को ए ले रहे हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को, इस एक्टिवेशन ऑफ कोएंजाइम ऑफ एसिटोएसिटेट को हम क्या कहते हैं, थायोफ्रेज कहते हैं, एंड इट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। द एसिटाइल को ए इज देन क्लीव्ड बाय थायोलेज to yield two acetyl CoAs. Now this acetoacetate is converted into acetoacetyl CoA, और ये acetoacetyl CoA है, ये cleaved हो रहा है by thiolase. This is an enzyme, ठीक है, to yield into टू एसिटाइल CoAs which enter the citric acid cycle. अब ये जो दो एसिटाइल CoA बने हैं यहाँ पे, ये citric acid cycle में जाएंगे और citric acid cycle रन होगा. Thus the ketone bodies are used as fuel in all tissues except liver. liver के अलावा ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो सब टिश्यूज़ में एज अ फ्यूल यूज़ हो सकती हैं. लीवर में क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज इट लेज थायोफ्रेज. इसमें थायोफ्रेज नहीं हो रहा था, इसमें एसिटोएसिटेट तो बन रहा है, लेकिन इसमें ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, इसका कोएंजाइम ए जो है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा. तो इसलिए एसिटोएसिटेट का कोएंजाइम एक्टिवेट नहीं हो रहा, इसलिए वो यूज़ ही नहीं कर पा रहा सक्सिनाइल को ए को, उससे को ए नहीं ले पा रहा, और फिर वो सिट्रिक एसिड साइकिल में वो फर्दर मूव नहीं कर रहा, ठीक है. उसके बाद वो कहते हैं द लिवर इज देयर फॉर अ प्रोड्यूसर ऑफ कीटोन बॉडीज फॉर द अदर टिश्यूज बट नॉट अ कंज्यूमर. दूसरे एक्स्ट्रा हेप्टिक जो एसिटोएसिटेट है वो प्रोड्यूस हो रहा है लिवर के अंदर, ठीक है, लेकिन लिवर उसको एक्स्ट्रा हेप्टिक टिश्यूज़ तक भेज रहा है ताकि वो उसको ऑक्सीडाइज करें कीटोन बॉडीज़ को. द कीटोन बॉडी इज़ व्हाट, इट इज़ एक्चुअली एसिटोएसिटेट, ठीक है. लिवर भेज रहा है एसिटोएसिटेट को एक्स्ट्रा हेप्टिक टिश्यूज़ के पास कि वो उसको ऑक्सीडाइज करें और यूज़ करें एज अ फ्यूल, लेकिन वो खुद यूज़ नहीं कर रहा. इस बेचारे के साथ ग्लूकोज के केस में भी यही हुआ था. वो ग्लूकोज लिवर में आ रहा था, जा रहा था, लेकिन उसको ट्रैप करने के लिए हाई केएम वैल्यू चाहिए थी, या फिर हमें ट्रैप करने के लिए हाई केएम वैल्यू नहीं चाहिए थी, उसकी केएम वैल्यू हाई थी, इसलिए हमें ज़्यादा कंसनट्रेशन चाहिए थी ग्लूकोज की, ताकि वो लिवर उसको यूज़ कर सकता, ट्रैप कर सकता. और यहाँ पे भी ये लिवर कीटोन बॉडीज़ को दूसरे टिश्यूज़ को दे रहा है, लेकिन वो खुद यूज़ नहीं कर रहा. तो आई गेस इन आवर बॉडी दिस लिवर इज़ द मोस्ट मिजरेबल ऑर्गन. वो बेचारा काम कर रहा है लेकिन गेटिंग नथिंग. ओके, दिस इज़ व्हाट इट इज़ द ऑक्सीडेशन. जो हमें एसिटोएसिटेट हमने लीवर में प्रोड्यूस किया था वो रिड्यूस हुआ था इनटू बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में, एंड दैट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है वो एक्स्ट्रा हेप्टिक टिश्यू में वापस ऑक्सीडाइज हो गई थी एसिटोएसिटेट में, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस सक्सिनाइल को ए इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल को ए. और ये एसिटाइल को ए क्लीव हो रहा है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटोएसिटाइल को ए जो है ये क्लीव हो रहा है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए. और ये एसिटाइल को ए ये अब जाएंगे सिट्रिक एसिड साइकिल में और ATP प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. मोर ओवर द लिवर कंटेन्स ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोएंजाइम ए, एंड व्हेन मोस्ट ऑफ इट इज टाइड अप इन एसिटाइल CoA ऑक्सीडेशन स्लोज फॉर वांट ऑफ द फ्री कोएंजाइम्स. हम लोगों ने क्योंकि एंजाइम्स देखे नहीं थे बीटा ऑक्सीडेशन में या कहीं पे भी, तो आई डोंट नो ये कोएंजाइम ए बीटा ऑक्सीडेशन में कहाँ पे यूज़ हुआ था. लेकिन व्हाट इट इज़ सेइंग कि कोएंजाइम जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है और वो बीटा ऑक्सीडेशन में कहीं पे कोएंजाइम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो जब वो टाई हो जाएगा एसिटाइल को ए के साथ तो वो ऑक्सीडेशन स्लो हो जाएगी, बिकॉज
इट इज़ इन लिमिटेड अमाउंट। जब ये एसिटाइल कोए के साथ जुड़ा हुआ है, जब इसकी अमाउंट कम हो गई है तो वो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो रही होगी, ठीक है। और जो कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं और वो एक्सपोर्ट हो रही हैं, तो वो कोएंजाइम ए को फ्री करती जा रही हैं, अलाउ कर रही हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को कंटिन्यू रहना। तो आई डोंट नो वेयर दैट कोएंजाइम ए यूज्ड बीटा ऑक्सीडेशन में, ये कहाँ पर यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, टाई हो रहा है एसिटाइल कोए के साथ, क्योंकि इसकी लिमिटेड अमाउंट है। तो जब ये एसिटाइल कोए के साथ हो जाएगी तो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी, बिकॉज आई डोंट नो वेयर इट इज़ परफॉर्मिंग इट्स एक्शन इन द बीटा ऑक्सीडेशन। तो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन में ये कोई पार्ट प्ले कर रहा है, और जब ये नहीं है तो फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। लेकिन जब हम कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, एक्सपोर्ट हो जाती हैं, तो वो को ए को फ्री कर जाती हैं, तो दैट को ए वापस से ऑक्सीडेशन में यूज़ होने लग जाता है और वो अलाउ करता है कि ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रहे। दिस इज़ व्हाट वी डिड ओवरऑल, हमने अब तक ये किया है। मैं इसको बहुत डिटेल में पहले बता चुकी हूँ। फैटी एसिड्स टूटे थे, सॉरी ट्राइग्लिसराइड टूटा था, ग्लिसरॉल जो है वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया था, फैटी एसिड लिवर में आया था, फिर वहाँ से वो माइटोकॉन्ड्रिया में गया, बीटा ऑक्सीडेशन हुई, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ, बायोसिंथेसिस हुई कीटोन बॉडीज़ की विच इज़ एसिटोएसिटेट, और एसिटोएसिटेट जो है वो रिड्यूस हुई थी डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में, विच इज़ जो कि सॉल्युबल था ब्लड में, और वो ट्रांसफ़र हो गई थी कीटोन बॉडीज़ इनटू द टिश्यूज़, एक्स्ट्रा हेप्टिक सेल्स टिश्यूज़ में वो ट्रांसफ़र हुई थी, और वहाँ पे इसकी कीटोन बॉडीज़ की ऑक्सीडेशन हुई थी, और फिर हमें सिट्रिक एसिड साइकिल रन हुआ था और हमें एनर्जी मिल गई थी। दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड येट, ठीक है। डायबिटिक मिलेटस एंड कीटोन बॉडीज़, ओके, दीज आर द लिपिड ड्रॉपलेट्स। हेपेटोसाइट, हेपेटोसाइट कहते हैं लीवर सेल को, ठीक है। दिस इज़ अ लीवर सेल। लीवर सेल के अंदर क्या हो रहा है कि फैटी एसिड आ रहा है, फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है, एसिटाइल को ए में बन रहा है, ठीक है। एसिटाइल को ए ऑक्सैलो एसिटेट के साथ मिलके इसने सिट्रिक एसिड साइकिल रन करना था, लेकिन ऑक्सैलो एसिटेट जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, और ग्लूकोज एक्सपोर्ट हो रहा है एज अ फ्यूल फॉर ब्रेन और अदर टिश्यूज़। ग्लूकोज हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ जो फ्यूल है वो ग्लूकोज है, प्राइमरी फ्यूल ग्लूकोज है। तो बॉडी जब हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में है तो बॉडी का जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि वो ग्लूकोज को वापस नॉर्मल लेवल पर लेकर जाए, और इसलिए उसको जहाँ कहीं से भी मौका मिल रहा है वो वहाँ पे ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रही है। तो जो ऑक्सैलो एसिटेट है वो कहाँ यूज़ हो रहा है, ग्लूकोज बनाने में यूज़ हो रहा है। अब ऑक्सैलो एसिटेट यहाँ पे कम हो गया, एसिटाइल को ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुए जा रही है, बिकॉज एसिटाइल को इज नॉट कंबाइनिंग विद एसिड ऑक्सैलो एसिटेट टू कन्वर्ट इनटू सिट्रेट, और फिर वो सारा सिट्रिक एसिड साइकिल रन करने के लिए तो जब एसिटाइल कोए की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जा रही है तो वो कीटोन बॉडीज़ बना देंगी, और ये कीटोन बॉडीज़ किस में कन्वर्ट होंगी, कौन सी हैं कीटोन बॉडीज़, दिस कीटोन बॉडीज़ आर एसिटोएसिटेट, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसीटोन, ये तीनों कीटोन बॉडीज़ हैं, और एसीटोन हम थ्रू लंग्स एक्सेल कर देंगे, और एसिटोएसिटेट डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू द स्केलेटल मसल, किडनी एंड ब्रेन सेल्स, और वहाँ पे जाकर ये दोबारा क्लीव होंगे, टूटेंगे और एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड है कीटोसिस ड्यूरिंग फास्टिंग और in diabetes mellitus when exogenic glucose is unavailable, insulin secretion is inhibited. In the presence of glucose we secrete insulin, but when there is no glucose we are in fasting condition or diabetes mellitus और hypoglycemic condition में इंसुलिन secrete नहीं हो रहा, और इंसुलिन के secretion, इंसुलिन का क्या काम था, ये ग्लूकागॉन को इनहिबिट करता था, और ग्लूकागॉन क्या करता था, वो लिपिड की मोबिलाइजेशन स्टार्ट करवाता था, ट्रिगर करता था। जब इंसुलिन नहीं है तो इसका मतलब वो ग्लूकागॉन को इनहिबिट नहीं कर रहा, और ग्लूकागॉन कॉन्टीन्यूसली अपना काम करवाता जा रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन ग्लूकागॉन इनहिबिट हो जाता है, और फिर हम सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी ले रहे होते हैं, लिपिड्स नहीं टूट रहे होते, ठीक है। द प्लाज्मा insulin concentration is therefore low which causes increased lipolysis. इंसुलिन की कंसंट्रेशन कम हो गई है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइपोलिसिस हो रही है, लिपिड्स टूट रहे हैं, therefore increased production of fatty acids, that's why fatty acids की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, and hence ketone bodies production is increased. fatty acids प्रोड्यूस हो रहे हैं, मोबिलाइजेशन में हमने क्या देखा था, फैटी एसिड प्रोड्यूस हो रहे थे और ग्लिसरॉल प्रोड्यूस हो रहा था। ग्लिसरॉल जो है वो ग्लाइकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बन रहा था, और फैटी एसिड आगे जा रहे थे, कीटोन बॉडीज़ बना रहे थे। When the rate
ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज बाय लीवर एक्सीड्स, जब कीटोन बॉडीज लीवर ज़्यादा बनाएगा, द कैपेसिटी ऑफ द पेरिफेरल टिश्यूज टू यूज देम अप, देयर लेवल्स बिगिंस टू राइज इन अप। ठीक है, जो लीवर के साइड पे टिश्यूज हैं, लाइक मसल्स टिश्यू हैं या कोई भी वट एवर टिश्यूज आर प्रेजेंट अराउंड द लिपिड, जो भी ऑर्गन्स हैं उनके जो भी टिश्यूज हैं, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी कि वो कीटोन बॉडीज यूज करें। An increase in concentration of ketone bodies in blood is called ketonemia, and eventually leads to excretion of ketone bodies into urine is called ketonuria. The overall condition, ketonemia and ketonuria, is called ketosis. This is what ketosis is. ठीक है, बिकॉज कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो वो ब्लड में ही ऑब्वियसली वो ब्लड से होके किसी भी ऑर्गन या टिश्यू के पास जाएगी ना, तो ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उसको क्या कहेंगे, कीटोनीमिया। एंड इवेंचुअली लीड्स टू एक्सक्रीशन ऑफ कीटोन बॉडीज इनटू यूरिन, यूरिन से जब कीटोन बॉडीज एक्सक्रीट होगी तो उसको हम यूरिन को क्या कहेंगे, कीटोनूरिया। और इस ओवरऑल कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कीटोसिस। और ये सब क्यों होता है, बिकॉज वी आर इन फास्टिंग स्टेट, वी आर इन हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, इंसुलिन इज नॉट सेक्रीटिंग, और वो इंसुलिन लेवल लो है, जिसकी वजह से फैटी एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं और कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब कीटोन बॉडीज जब इंक्रीज हो रही हैं तो उनकी रेट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है बाय पेरिफेरल टिश्यूज, वो लीवर में प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन लीवर उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, उसे दूसरे टिश्यूज जो हैं इर्द गिर्द वाले जितने भी टिश्यूज हैं वो उसको यूज़ करेंगे, और जिसकी वजह से ब्लड में इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड में कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो कीटोनीमिया, यूरिन में कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो कीटोनूरिया, और इस ओवरऑल कंडीशन को हम कहते हैं कीटोसिस। Factors regulating lipolysis or lipolysis, whatever it is. Fatty acids, the precursor of ketone bodies, arise from lipolysis of triacylglycerol in adipose tissue. कीटोन बॉडीज किससे बनती हैं, फैटी एसिड से, और फैटी एसिड कहाँ पे आता है, लिपोलिसिस से आता है, ऑफ व्हाट, ट्राइसाइलग्लिसरॉल के टूटने से आता है, और ये ट्राइसाइलग्लिसरॉल कहाँ पे होता है, एडिपोज टिश्यू में। सो फैक्टर्स रेगुलेटिंग लाइपोलिसिस आल्सो रेगुलेट कीटोजेनेसिस, जैसे जितना लिपिड की डिस्ट्रक्शन, और यू कैन जितना लिपिड की मोबिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, जितनी लाइपोलिसिस ज़्यादा हो रही है, जितना लिपिड ज़्यादा टूट रहा है, उतनी ही कीटोजेनेसिस भी ज़्यादा हो रही है, उतनी कीटोन बॉडीज़ भी ज़्यादा हो रही हैं। इफ देर इज एन एमसीक्यूज विच सेज के फैटी एसिड का कीटोजेनेसिस, फैटी एसिड के ब्रेकडाउन का कीटोजेनेसिस के प्रोसेस पे क्या इफेक्ट है, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट है, वो इसको अपग्रेड कर रहा है, वो इसको इंक्रीज कर रहा है कीटोजेनेसिस को। द हार्मोन ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स लिपोलिसिस, हार्मोन कौन सा स्टिमुलेट करता है, लिपोलिसिस को ग्लूकागॉन करता है, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स कीटोजेनेसिस, ग्लूकागॉन लिपोलिसिस स्टिमुलेट करता है और हमें क्या मिलता है, फैटी एसिड्स मिलता है, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स कीटोजेनेसिस, whereas insulin inhibits lipolysis and ketogenesis because insulin is inhibiting glucagon, and when there is no glucagon, it will obviously not stimulate the production of fatty acid, which is eventually not going to convert into ketone bodies, और इस कीटोन बॉडीज की प्रोडक्शन को हम कीटोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकोज इज द मेजर फ्यूल फॉर द ब्रेन एंड रेड ब्लड सेल्स इन वेल नरिश्ड पीपल ऑन अ बैलेंस डाइट। जो लोग किसी किस्म की बीमारी का शिकार नहीं है, लाइक वी आर द नॉर्मल पीपल एंड वी डोंट हैव डायबिटीज, तो हमारे पास इन एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी ब्रेन सेल और रेड ब्लड सेल्स के लिए, वो कीटोन बॉडीज होंगी। लेकिन व्हेन वी आर ऑन अ बैलेंस डाइट, क्यों, बिकॉज हम लोग जो नॉर्मल पीपल हैं विच डोंट हैव एनी डायबिटीज, वो लोग कीटोन बॉडीज कब यूज करेंगे, व्हेन दे आर नॉट इन वेल फेड स्टेट। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट को तो ऑब्वियसली ग्लूकोज नहीं मिल रहा ना, वो तो कॉन्टिन्यूसली लिपिड्स ही तोड़ रहे हैं और वहीं से वो कीटोन बॉडीज बना रहे हैं और वो एनर्जी ले रहे हैं। इफ दे आर नॉट टेकिंग इंसुलिन, अगर वो अपनी इंसुलिन नहीं लेते हैं तो ग्लूकागॉन कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेट कर रहा है लिपोलिसिस को और वो कीटोजेनेसिस हो रही है। ठीक है, बट नॉर्मल पीपल जो कि वेल फेड हैं, वहाँ पे ग्लूकोज मेजर सोर्स है फॉर ब्रेन सेल एंड रेड ब्लड सेल्स, राइट। हाउएवर द ब्रेन अडॉप्ट्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ एसिटोएसिटेट ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड डायबिटीज। लेकिन जो ब्रेन का दूसरा या सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ड्यूरिंग स्टारवेशन और डायबिटीज, बिकॉज स्टारवेशन में आपके पास ग्लूकोज नहीं है लेकिन ब्रेन को तो ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा, एसिटोएसिटेट से लेगा। और डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ग्लूकागॉन हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली वो लिपोलिसिस कर रहा है, कीटोजेनेसिस कर रहा है, तो कीटोन बॉडीज बन रही हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में भी ब्रेन सेल का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, acetoacetate, which is a ketone body. In prolonged starvation, 75% of the fuel needs of the brain are met by ketone bodies. Prolonged starvation में 75% फ्यूल जो ब्रेन को चाहिए टू बी एक्टिव, टू वर्क, टू फंक्शन, वो कहाँ से मिलता है, कीटोन बॉडीज से मिलता है।
ऑब्वियसली स्टारवेशन में आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, आप जब स्टार्व हो, आप वेल फेड नहीं हो, तो आप ग्लूकोज नहीं ले रहे ना, तो ड्यूरिंग दिस कंडीशन 75% नीड जो है वो आपकी कौन पूरी करता है? कीटोन बॉडीज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अगेन द ओवरऑल रिएक्शन। फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन हुई, एसिटाइल को ए मिला, वो एसिटो एसिटेट में कन्वर्ट हुआ। नाउ दिस एसिटो एसिड, तीन चीज़ें बल्कि हमें मिल रही थी एसिटाइल की जब हमने कीटोजेनेसिस पढ़ी थी, उसमें हमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट मिल रहा था, एसीटोन मिल रहा था, एसिटेट मिल रहा था और एसीटोन मिल रहा था। एसीटोन जो है वो रिलीज हो रहा था एक्सेल्ड बाय लंग्स, और बीटा डिहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ये ब्लड में गया और ब्लड से होता हुआ ये एक्स्ट्रा हेप्टिक टिश्यूज़ के पास गया, पेरिफेरल टिश्यूज़ के पास गया और वहाँ पे वापस एसिटो एसिटेट में कन्वर्ट हुआ, इसकी ब्रेकडाउन हुई, सिट्रिक एसिड साइकिल चला, एटीपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये एसिटो एसिटेट बीटा डी हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में इंटर कन्वर्टेबल है, राइट? ये डायरेक्टली भी मूव आउट कर रहा है और ये बीटा डी हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कन्वर्ट होकर यहाँ से भी मूव आउट कर रहा है। And that's all. This is an end to our lipid topic. Thank you for watching.